Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today is our 12th lecture, and today's topic is image enhancement. But before going into the today's topic, what we will do, we will summarize the previous lecture. So in the last lecture what we did is to find out the complexity of image transformation operation, and we find out that it is quite complex, and we have the values of order n power 4, and that was a lot of processing needed for even 256 by 256 pixel image. Then it's quite expensive for us, and for that we need to find out how to solve this equation by reducing the complexity. And for that we learned that if we represent the separable transformation, then we can use this separable transformation and we can reduce the complexity using separable transformation. And then we learn how the equation is working, and at the end we also have one example of taking a matrix of 2 dimension and find out how this enhancement can perform on it. So today's lecture is about image enhancement, and we will see what means by image enhancement and why do we need it. So see the importance of image enhancement, and then also we will learn how many categories there are if we want to have enhancement in the image. And then also we will learn that if there are normally 2 categories. One is called spatial domain operations, and the other one is called frequency domain operations. And these two are exactly different from each other, because one is directly performing on the images, and the other one is we need to find out some Fourier transform or some other transformation, and then after that we can perform the enhancement on that specific values. So first we will learn about domain specific or spatial domain operations. So that is directly on the image pixels, and then there is one type which is called point processing, and the other one is called histogram based processing techniques, and another one is mask processing techniques. So we will learn all of them, and today we will learn only point processing, because there are multiple types of point processing. And then after that, in the coming lectures, we will try to learn the rest of the processing techniques for image enhancement. So first of all, we need to find out what is image enhancement, why do we need it. So processing an image to enhance certain feature of the image. This means that if we need to find out the features of the image, and then we enhance it. Enhance it means we can reduce the noise, we can enhance the contrast, we can have some other filtering like smoothing it, and other types of enhancement. So this what we call it as a image enhancement, like we need to process this image, and this is normally we call it a pre-processing. The result is more suitable than the original image for certain specific applications, and this is why do we need it, because for some certain applications we need to have some specific processing. For example, if we need to find out the details of the image, but these details are not visible, then we can perform different kind of enhancement to see the details. Like if the points are a bit darker, then we can increase the contrast of it, and then we can see the image properly, or the details of it properly. तो यहाँ पर हम इमेज इन्हांसमेंट से सिंपल ये मतलब ले रहे हैं कि हम इमेज को बेहतर बनाते हैं. बेहतर किस सेंस में है वो डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर. तो एप्लीकेशन अगर हमारी ये है कि हमने ब्लैक एंड वाइट इमेज है, और उसमें हमने जो वाइट एरियाज़ हैं वो प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो जो लाइट वाइट कलर के हैं हम उसको ज़्यादा लाइट कर देंगे तो ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे. इस तरह और भी डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस हैं.
लेकिन मोर लेस हर एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या चाह रहे हैं। प्रोसेसिंग टेक्निक्स आर वेरी मच प्रॉब्लम ओरिएंटेड। अब ये बात हमने ऑलरेडी कर ली कि जब हम इन्हांसमेंट करते हैं इमेज की, तो इसका मतलब ये है कि वो हम प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, हमारे इमेज की सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है कि हम इस इमेज में क्या चाह रहे हैं, हम कौन से फीचर्स आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम एग्जैक्टली वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। Best techniques for enhancement of X-ray image may not be the best enhancement of microscopic images. अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि अगर हम एक्सरे इमेजेस लेते हैं तो उसके ऊपर अगर हम कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसको इन्हांस कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं वही सेम ऑपरेशन अगर हम वहाँ पर परफॉर्म करें तो वहाँ पर रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। तो हर ऑपरेशन या हर इन्हांसमेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है हमारे प्रॉब्लम के ऊपर, हम क्या आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो इन्हांसमेंट जो है वो इन अ सेंस ऑफ फाइंडिंग आउट द फीचर्स एंड इन अ बेटर वे। अब हमें फीचर्स चाहिए इमेज से, लेकिन वो फीचर अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम करते क्या हैं कि उसके ऊपर उन डिफरेंट किस्म की प्री प्रोसेसिंग करते हैं, और उस प्रोसेसिंग के बाद जो हमें इमेज मिलता है तो शायद हम उससे वो फीचर इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इमेज इन्हांसमेंट है। ठीक है। टाइप ऑफ इमेज इन्हांसमेंट, अगर हम ये देखना चाहें कि अब अगर हम इन्हांसमेंट कर रहे हैं तो ब्रॉड कौन सी दो कैटेगरीज हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये इमेज इन्हांसमेंट्स में आती हैं। सो इन्हांसमेंट टेक्निक्स फॉल अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज। नॉर्मली हम दो बड़े कैटेगरीज में देखते हैं और फिर हर कैटेगरी के सब ऑपरेशंस हैं और सब रूटीन्स हैं। स्पेशल डोमेन टेक्निक वर्क ऑन अ इमेज प्लेन इटसेल्फ। अब स्पेशल डोमेन टेक्निक्स हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक्स हैं। तो स्पेशल डोमेन टेक्निक्स में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम जो इमेज है उसके ऊपर डायरेक्टली इन्हांसमेंट परफॉर्म करते हैं। मतलब ये हुआ कि हम उसको जब कंट्रास्ट इन्हांस करना चाह रहे हैं तो वो हम डायरेक्टली करते हैं, वो हमें पिक्सल टू पिक्सल हम इमेज के ऊपर जाकर उसको परफॉर्म करते हैं। डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ पिक्सल इन एन इमेज। अब जो इमेज में जो वैल्यूज़ हैं एक्स वाई लोकेशन की किसी पिक्सल की, हम उसको डायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं उसकी नाइबर किस के लिहाज से या उसकी इंटेंसिटी के लिहाज से, या हम और भी डिफरेंट किस्म के तरीके हैं, मास्क ले लेते हैं उसके लिहाज से। तो हम डिफरेंट तरीक़ों से उस इमेज को डायरेक्टली उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। और दूसरा जो कैटेगरी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक, तो उसमें हम ये करते हैं कि मॉडिफाई फोरियर ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट ऑफ एन इमेज। अब उसमें हम जो इमेज का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म कोफिशिएंट होता है, हम उसके ऊपर चेंजेस लाते हैं, हम उसको चेंज करते हैं, तो उसको इन्हांस करते हैं। तो वो हम नॉर्मली करते ये हैं कि हम टेक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द मॉडिफाइड कोफिशिएंट टू ऑब्टेन द इन्हांस्ड इमेज। अब हम पहले तो हमें चाहिए होगा कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाई करें इमेज का, और उसके बाद हम क्या करें कि उसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, तो हम उसको इमेज को इन्हांस कर लेते हैं। तो हमें इसके लिए ज़रूरी है फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक्स के लिए कि हमें पहले ये पता हो कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे लेते हैं, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किसी इमेज के ऊपर हम वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे पहले जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी तो वो बिल्कुल सिंपल थी। अब इसके बाद जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो ये स्पेशल पर्पस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पहले हम ये देखेंगे और उसके बाद फिर जब हमें ये समझ आ जाएगी कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेते हैं, तो हम उसके बाद उसका इन्वर्स लेंगे। तो जब उसका इन्वर्स ले लेंगे तो वो हमारे पास सिंपल इन्हांसमेंट आ जाएगी इमेज के ऊपर। तो आज जो है हमारा फोकस होगा वो है स्पेशल डोमेन टेक्निक्स। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली लेते हैं कि अगर हमारे पास एक हम एक्स सिग्नल लेते हैं और वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब इसके ऊपर हम कोई परफॉर्म करते हैं इन्हांसमेंट। अब इस इन्हांसमेंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू टी आ गई।
तो इस t को हम कहते हैं कि ये इन्हांसमेंट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं इस x के ऊपर। तो ये हमें इन द रिजल्ट्स हमें ये क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वो वाला gx जो कि अब चेंज हो गया, जिसमें इन्हांसमेंट आ गई है। तो ये हमारे पास वो वाले वेरिएबल है। अब हम इन्हांसमेंट वेरिएबल हमारे पास अब ये होगा, ये हमारा टारगेट होगा, लेकिन इसको हम लेंगे कैसे कि हम ओरिजिनल सिग्नल जो है उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं कोई भी इन्हांसमेंट टेक्निक। अब चूंकि हमारे पास जो इमेज है वो 2 डायमेंशन में होगा, तो इस वजह से हम करते क्या है कि हम लेते हैं f ऑफ x और y। तो जब हम ये लेंगे और इसके ऊपर हम परफॉर्म करते हैं कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इन्हांसमेंट के लिहाज से होगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी g ऑफ x एंड y। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि हम जब ये परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर तो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट जो है g ऑफ x y आ जाएगा। तो ये उस लोकेशन पे होगा। अब ये डायरेक्ट उन पॉइंट्स के ऊपर है x y की लोकेशन के ऊपर। सो द स्पेशल डोमेन इमेज enhancement technique, normally we say that the special domain techniques were directly on the image pixel. So naturally we have to define a transformation function which will transform an image pixel from the original image to pixel to enhance the process image. So such function can be defined in a form of gx, f of x, and transform this transformation, okay, and then in a form of 2-dimension image, then we say that g of x y is equal to t of f of x y. So this is the transformation in a form of 2-dimension. Now what we will do, we will focus on one of the properties of we learned that we have different kind of special domain techniques. So in that, the first one we will learn is the point processing technique. So point processing technique, how does it work? Normally it works like if we need to find out something in the surrounding of some specific pixel, so which is in the case of a neighbor. So we take the neighbors of the specific pixel and then we utilize it. So this point processing transformation of operator t operates at point xy considering a certain neighborhood of the input of the point xy. So if we consider that this is our image and this image has a function f, then if we want to take this point xy, so we consider the values in the neighbors. So neighbor size of 3 by 3 around point xy. So this is if we take 3 by 3 neighbors, but we can also take different size of neighbors. It can be 5 by 5, it can be 7 by 7, and different types of neighbors we can take it. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉइंट प्रोसेसिंग की। जो स्पेशल डोमेन टेक्निक है उसमें हमें क्या चाहिए कि हम नाइबर्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस नाइबर की इंफॉर्मेशन को हम उस x की लोकेशन पे, जिस x y की लोकेशन पे हम इंसर्ट कर देते हैं। तो नॉर्मली हम 3 by 3 लेते हैं नाइबर्स, लेकिन हम इससे ज़्यादा नाइबर्स भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि जिस पॉइंट को हम चेंज कर रहे हैं कितने नाइबर्स की कंट्रीब्यूशन उस पॉइंट तक होनी चाहिए। अगर तो हम चाहते हैं कि जो उसके एडजेसेंट करीब जो भी नाइबर्स हैं सिर्फ उनका इन्फ्लुएंस हो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, तो हम नाइबर्स कम लेते हैं। लेकिन जब हम ये चाहें कि पूरा इमेज जो है वो उनका रिलेशनशिप हम डिफाइन इस तरह करें कि एक पॉइंट जो है वो उसका इन्फ्लुएंस जो है बाकी नाइबर्स का इन्फ्लुएंस जो है वो उस एक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा हो, तो उस सिचुएशन में हम ज़्यादा नाइबर्स लेते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं सिंगल पिक्सल लोकेशन। अगर हम सिंगल पिक्सल लोकेशन पे नाइबर्स की इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करना चाहें या हम इसको पॉइंट प्रोसेसिंग
ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहें तो सिंगल पिक्सल लोकेशन पे क्या होगा, वो उसके लिए हम कोई भी नाइबर्स की इंफॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 by 1 आएगा हमारे पास। So in case of single pixel location, the neighbor size is 0. So we are not using any of the neighbor size, and this is only 1 by 1. This means that whatever pixel we are taking, we will only consider that specific pixel. So if this is the example that we have. So this is what we call it as a 1 by 1 because it has no pixels, neighbors pixel that effect on this specific value. So for that, what we can do, the formula that we can derive is S is equal to T R. अब हमारे पास ये R जो है ये ओरिजिनल इमेज की वैल्यू आएगी, T जो है वो हम जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी के बेस पे या जो भी हम यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू रखना चाह रहे हैं वो होगा, और ये हमारे पास जब हम परफॉर्म कर चुके होंगे तो ये जो हमारे पास न्यू इमेज आएगी वो होगी। ठीक है, तो ये ओरिजिनल हो जाएगा और ये हमारे पास सिंपल वो फंक्शन है जिससे हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर हम सिंगल पिक्सल लोकेशन को ले रहे हैं तो सिंगल पिक्सल लोकेशन की सिचुएशन में क्योंकि इसके ऊपर कोई भी नाइबर्स का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम किसी भी जगह पर जाकर एक्स वाई लोकेशन पे जाकर इस पॉइंट को लेंगे, उसकी इंटेंसिटी को चेक करेंगे। तो ये हमारे पास सिंगल पिक्सल लोकेशन के लिए सिंपल फार्मूला आ गया। अब हम करते क्या हैं कि हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं कि हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। सो पॉइंट प्रोसेसिंग फॉर अ सिंगल पिक्सल, नॉर्मली वी प्लॉट इट एज अ 2D graph. So how it is that on the horizontal, so on horizontal axis what we say on a x-axis which is r, values of r, which is original values, and on the vertical we have y. For y values we use it as a tr. So we perform the transformation and then we have the values of s. So in this situation there are values which are increasing in situation of r. So from 0 0 there is no effect, but when we are going in some direction, then after that we have a smooth curve which is extending and in the direction of r, tr, which is the values of s. And in here it is quite sudden change that if we have values which are even increasing in some intensity, but after some intensity it is sudden change that we change it into some specific height, extreme light values. So what we have in this corner, we have a 0 0, and this 0 0 is actually the darkest values, and then we have the maximum intensity that any of intensity it can be, and such same is in this direction. अगर हम यहाँ पर देखें तो दो डिफरेंट ग्राफ्स हैं, और एक जो है जब हम स्टार्ट करते हैं 0 0 से तो 0 डार्क होंगे हमारे पास दोनों सिचुएशन में। ठीक है, और जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं इस पे r की तरफ, r हमारे पास ओरिजिनल इमेज की वैल्यूज हैं, तो इस सिचुएशन में क्या आएगा कि वो लाइट होती जाती हैं। तो अगर हम इवन किसी एक लेवल पर चले जाते हैं, ये वैल्यूज़ हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 10 तक हम जाते हैं, तब भी इंटेंसिटी हमारे पास जो उसका आउटपुट है, आउटपुट फिर भी 0 ही आ रहा है। लेकिन जब हम 10 से आगे क्रॉस करते हैं और 10 के बाद हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 15 वैल्यू है, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है, तो उसके लिए हमारे पास जो जनरेट होगा s, वो कुछ इस तरह होगा। तो s की जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी हम वो ले लेंगे, और सेम इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे और ये एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिससे हम आगे उसको ज़्यादा वाइटनेस की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये इंटेंसिव हो जाता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी चेंज भी आएगी तो वो चेंज जो है वो वाइट की तरफ सडन जाएगा। तो
ये जो डिस्टेंस है ये कम है और फिर ये वाला जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इमेज आएगी वो कुछ ग्रे स्केल की सिचुएशन में आएगी, कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो डार्क होंगे और उसके बाद वो लाइट होना शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे वैल्यूज़ जो हैं वो वाइट होंगे और उसके बाद फिर कुछ वैल्यूज़ होंगे जो एक्सट्रीमली वाइट होंगे। वाइट का मतलब ये कि वो जो वैल्यूज़ हैं वो जो भी उसकी इंटेंसिटी वैल्यूज़ होगी वो मैक्सिमम वैल्यूज़ जो भी होगी वो यूटिलाइज हो रही होगी। अब इस सिचुएशन में हम अगेन लेते हैं 0 0 वैल्यूज़। तो अगर आप देखते हैं कि हम जब यहाँ से चलते जाएंगे तो इवन हम अगर चले जाते हैं 15 पे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 15 वैल्यूज़ हैं, तो 15 इंटेंसिटी वैल्यूज़ आ गई हैं, तब भी हम उसको 0 ले रहे हैं, मतलब आउटपुट जो हमारे पास आएगी वो 0 आएगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम 16 पे फॉर एग्जांपल जाते हैं तो 16 पे हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सट्रीम पे चली जाती हैं, वो जो भी मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू होगी इंटेंसिटी की हम वो यूज़ कर लेते हैं और 15 16 से ऑनवर्ड जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हम उसको एक्सट्रीम वाइट दे देते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास इनपुट इमेज की इंटेंसिटी वैल्यूज़ जो है वो 0 से स्टार्ट होकर कोई मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 90, तो 90 तक वेरी कर रही हैं। लेकिन जब हमारे पास आउटपुट वैल्यूज़ आएंगी तो वो आउटपुट जो है वो सिर्फ 2 कलर्स में आ रहा होगा और वो 2 कलर्स क्या होंगे, एक होगा ब्लैक और एक होगा वाइट। और सेम यहाँ पर भी इंटेंसिटी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं एक सर्टन रेशो के साथ, लेकिन जब हम उसको चेंज कर लेते हैं तो वो एक स्मूथ ग्रे कलर में आ जाएंगे वैल्यूज़। तो अब ये जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये थ्रेशोल्ड ऑपरेशन है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जब हमने देखा कि हम कोई एक पिक्सल लेते हैं और इस पिक्सल की हम इंटेंसिटी चेक करते हैं, इस पिक्सल की इंटेंसिटी अगर तो हमारे पास 10 है तो इसको हम असाइन करते हैं। अगर हम इस ग्राफ को लेते हैं जो हमने डिफाइन किया था कि 10 अगर हम लेते हैं तो उसकी कोई इंटेंसिटी वैल्यू होगी 2 या 3 हमने रख दी, तो वो आउटपुट के तौर पर आ जाएगी। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस सिचुएशन में 10 जो भी वैल्यूज़ होंगी 10 की वो हम उसको ब्लैक कर देंगे, एक्सट्रीम 0 0 पे रख देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सिंपल, इसको इस वजह से थ्रेशोल्ड ऑपरेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमने एक सेट कर लिया। इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को डिपेंड करता है आप कैसे सेट करते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर ले आते हैं तो फिर बहुत जल्दी जो इंटेंसिटी वैल्यूज़ जो हैं जो कि डार्क हैं, एक्सट्रीम डार्क हैं तो वो डार्क रहेंगी, लेकिन जो कम डार्क हैं और वो थोड़ा सा भी उसमें चेंज आ रहा है एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद तो वो सारे वाइट हो जाएंगे। और अगर आप इस थ्रेशोल्ड को आगे लेकर जाते हैं, इस पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ हैं वो हमेशा डार्क ही रहेंगी, वो सारी की सारी डार्क रहेंगी। मतलब हमारे पास जो आउटपुट इमेज है उसमें डार्क कलर ज़्यादा होगा और वाइट कलर कम होगा, वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी वो वाइट में कम होगी। और सेम इसी तरह हम इस फंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, इस टी को चेंज कर सकते हैं जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए। हम इसकी डायरेक्शन हम मुख्तलिफ ले सकते हैं। मतलब ये कि अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करने की बजाय यहाँ पर ले आऊँ और यहाँ से आगे जाऊँ तो भी हो सकती हैं, मेरे पास ये वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ पर रख रहे हैं। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट इसके रिजल्ट्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हम कुछ मास्क यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर हमने डायरेक्टली उन वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम एक मास्क यूज़ करते हैं जो कि एक्चुअली एक कोफिशिएंट वैल्यूज़ हो सकते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं। आपको याद है हमने टेम्पलेट की एग्जांपल देखी थी कि हम कोई टेम्पलेट यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या फिल्टरिंग के लिए, तो हमने एक लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक मास्क लेते हैं जो एक्चुअली 3x3 पिक्सल पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने 3x3 का मैट्रिक्स लिया
और हम करते क्या है कि जो भी वैल्यू इसके सेंटर में होगी, जो भी पिक्सल इसके सेंटर में होगा, हम वहाँ पर वो इफ़ेक्ट डाल देते हैं। अब हमने ये देखा था कि हम पॉइंट ऑपरेशंस जब अभी परफॉर्म करेंगे तो वो उसके नाइबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके नाइबर्स की वैल्यूज़ जो है हम वो लाते हैं यहाँ पर। अब अगर ये हमारे पास इमेज है तो हम वैल्यूज़ लेते हैं 0 0 से, और आपको ही पता है कि हम नॉर्मली एक्स डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और वाई में हम इस डायरेक्शन में जाते हैं। तो अगर ये हमारे पास वो इमेज है जिसको हम f लेते हैं, तो ये f इमेज है और इसके अंदर हम डिफरेंट पिक्सेल्स ले रहे हैं। अब ये पिक्सेल्स जो हैं हम इस लोकेशन पे जब पहुंचते हैं तो हम इसके नाइबर्स लेते हैं 3x3। तो वो नाइबर्स की वैल्यू जो इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं हम उनको लेकर उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर डालते हैं। तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? w -1 -1, w -0, w -1 +1, फिर w 0 -1, w 0 0, w 0 1, फिर w 1 -1, w 1 0, w 1 1। तो ये उसके लोकेशंस की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब इसके लिए हम करते क्या है कि सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं और वो है g of x y। ये जो हमारे पास इमेज हमें एट द रिज़ल्ट मिलेगा, वो रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम लेते हैं f of x plus i और y plus j, इनको लेते हैं और हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं wi j के साथ, और i और j जो हैं वो स्टार्ट होते हैं -1 से और वो जाते हैं 1 तक। मतलब ये कि क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये -1 से और +1 तक जा रही हैं, तो उसमें 0 भी दरमियान में आ रहे थे, इस वजह से हम ये वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो अब हम करते ये हैं कि इनके इंटेंसिटी वैल्यूज़ लेते हैं, हर एक की 1 बाय 1 हम चलते जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं wi के साथ। इसकी वैल्यू जो भी होगी, जो हमारे रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब ये x और y की जो लोकेशन है, जो ओरिजिनल इमेज पे हम जाएंगे, यहाँ से ये वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। हमने ये वाली वैल्यू ली x -1 और y -1, तो इसकी वैल्यू हमने ली और हमने उसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ। फिर सेम इसी तरह वैल्यू हमने दूसरी ली और मल्टीप्लाई किया इसके साथ, और सेम हमने तीसरी वैल्यू ली और उसको मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे और आखिर में हम सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो एट द एंड हम वापस पुट कर देते हैं इस लोकेशन के ऊपर। तो ये g of x y जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं जो 0 0 लोकेशन पे होगा। तो ये हम इसको कहते हैं मास्क। तो ये मास्क यूज़ करते हैं और जो कोफिशिएंट वैल्यूज़ हैं वो wi j हमारे पास आ रही हैं। अब ये wi j टोटली डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं इस इमेज के साथ। क्या हम इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं या इसके नाइबर्स को फिल्टर करना चाह रहे हैं या इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो वो जो भी वैल्यू हम लेंगे वो इफ़ेक्ट करेगा यहाँ पर। और उसके बाद ये भी है कि हम ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम 3x3 लें, हम 9x9 का मैट्रिक्स लेते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हम कितने नाइबर्स की इंफॉर्मेशन की इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये इसको हम कहते हैं मास्क ऑपरेशन, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम W के डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं तो वो हमें डिफरेंट किस्म के फ़ीचर्स देते हैं, हम डिफरेंट किस्म के फ़ीचर्स को इन्हांस करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने जो मास्क लिया, अब W के डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके ओरिजिनल वैल्यूज़ के साथ। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि अगर हमने कोई शेप की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करना है, अगर हमने शार्पनेस लानी है, अगर हमने उसका नॉइज़ रिमूव करना है, तो इसके लिए हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे W के। ये टोटली डिपेंड करता है हमारे लिए कि हम कौन से W के वैल्यूज़ लेते हैं। तो ये नॉर्मली हम इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट वैल्यूज़। सो डिफरेंट पॉइंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। द कोफिशिएंट वैल्यूज़
which are W values in mask determine the kind of image enhancement operations. So image which can be image sharpness operation, image average operation, or other kind of different operations for noise removal or for contrast or any other. So all of them depend upon the mask values, that is the Wij present in this particular mask. तो अब हम छोटे से एग्जांपल्स देखते हैं चंद एक के, अगर हम W के डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं तो हमारे पास क्या असर आता है जब हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहें. नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेगेटिव इमेजेस. अगर हम कोई हमारे पास इमेज आ रहा है और हम उसका नेगेटिव लेना चाहते हैं तो नेगेटिव कम्प्लीटली रिवर्स होता है वैल्यूज़ का. मतलब ये है कि अगर जहाँ पर हमारे पास ब्लैक कलर होगा तो वो वाइट हो जाएगा, और जहाँ पर वाइट है उसको हम ब्लैक कर लेते हैं. तो हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं ग्रे स्केल की इमेज की. अगर हमारे पास इमेज की इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी जो है वो 0 से 1 के इन बिटवीन है, तो 0 हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं डार्क को, और जो 1 है वो हम वाइट को रिप्रेजेंट करते हैं. जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में देखा यहाँ पर कि अगर हम कोई पॉइंट प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो डार्क जो है वो हमारे पास आएगा बिल्कुल 0 के करीब, और जैसे ही हम आगे जाएंगे तो इंटेंसिटी वैल्यू बढ़ती जाएगी. तो ये हम डिफरेंट रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास 256 रेंज है. अगर हम 256 रेंज के दरमियान कोई भी इंटेंसिटी वैल्यूज़ रखते हैं तब भी हम कर सकते हैं, और अगर हम 0 से 1 के दरमियान कोई रेंज रखना चाह रहे हैं तब भी हो सकता है. तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हम उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह कर रहे हैं. तो अब अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहे हैं तो नेगेटिव की सिचुएशन में क्या होगा, अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास उसके हम अगर फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला क्या होगा, S इज इक्वल टू TR एंड TR इज इक्वल टू L माइनस 1 माइनस R. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, इमेज के इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R के साथ, और वो जा रहे हैं L माइनस 1 तक. ठीक है, ये हमारे पास L माइनस 1 तक जा रहे हैं, और हम जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है जिसके बाद हम परफॉर्म करते हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं L माइनस 1 तक. इसका मतलब ये कि हम दोनों सिचुएशन में L माइनस 1 तक जा रहे हैं. लेकिन अगर हम वैल्यूज़ देखते हैं 1 बाय 1, तो जब हम वैल्यू किसी पॉइंट पर होंगे R के, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.2 आ रहा है, तो 0.2 जो है उसकी इंटेंसिटी वैल्यू क्या होगी, अगर हम उसका आउटपुट देखना चाहेंगे तो वो टोटली रिवर्स होगा उसका L माइनस 1 का. तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी L की कोई भी हम वैल्यू रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको रखते हैं 1, तो टोटल हमारे पास हो गई 1 वैल्यू. तो अब हम करते क्या हैं कि हम इसको टोटली रिवर्स कर देते हैं कि हम जब भी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं 1, ये L हमें एक्चुअली बताता है कि जो शिफ्ट आ रहा है हमारे पास वो क्या है, जो लेवल जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है. तो अब अगर हम 0.2 लेते हैं तो उसका कम्प्लीटली रिवर्स आ जाएगा. यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है 0.8, तो वो यहाँ पर 0.8 में उसको कन्वर्ट कर देता है. तो 2 को कम्प्लीटली रिवर्स कर देगा, मतलब वो 1 के करीब ले आएगा. यहाँ पर हम 0 के करीब थे, यहाँ पर अब हम 1 के करीब आ गए. सेम इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती जाएंगी और वो आ जाएंगी एग्जैक्टली रिवर्स पे, रिवर्स L माइनस 1 आ जाएगा. तो जहाँ पर हमारे पास, और क्योंकि ये ग्रे लेवल है तो ग्रे लेवल में कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी कि जो मिड में होंगी जिस पे कोई असर नहीं होगा. मतलब ये कि अगर हम उनको जो उनकी इंटेंसिटी वैल्यू थी वो एग्जैक्टली वही रहेगी, तो वो चेंज नहीं हो रहे होंगे. तो अगर हम इसका रिज़ल्ट देखना चाहें तो रिज़ल्ट क्या होगा, अगर ये हमारे पास एक मेमोग्राम इमेज है जिसमें हम कैंसर आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो नॉर्मली मेमोग्राम इमेजेस जो हैं वो ग्रे स्केल में होती हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज़रा डार्क इन्फॉर्मेशन है और हमारे पास कोई डिटेल नज़र नहीं आ रहे.
अब इस सिचुएशन में अगर हम इसका नेगेटिव इमेज लेते हैं तो नेगेटिव की सिचुएशन में हमारे पास आउटपुट ये आ जाता है। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें बहुत इजीली बहुत सारी डिटेल नज़र आ रही है, और उस डिटेल की वजह से जो डायग्नोसिस है और जो आफ्टर डायग्नोसिस जो प्रोसेसिंग करना है, फॉर एग्जांपल सर्जरी या ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो एरिया है वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है कि वो एरिया कहाँ पर है, और दूसरा ये कि उसका इफ़ेक्ट किन एरियाज़ तक जा रहा है, मतलब ये कि वो इफ़ेक्टेड एरियाज़ कौन से हैं। तो ये मेडिकल डायग्नोसिस में मोस्टली जो हमारे पास इमेजेस आते हैं, एक्सरे हो गए, हमारे पास ये अल्ट्रासाउंड हो गई, और हमारे पास ये मेमोग्राम इमेजेस हो गए, तो ये ग्रे स्केल इमेजेस होती हैं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कलर भी आ रही हैं, लेकिन मोस्टली जो अवेलेबल है वो हैं ग्रे स्केल इमेजेस। अब ग्रे स्केल में हमारे पास चूँकि ओरिजिनल इमेज इस तरह होता है तो हमें वो डायग्नोसिस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम उसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें बहुत सारी डिटेल हमें नज़र आ जाती है। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने कंट्रास्ट को इन्हांस करना है, कंट्रास्ट क्या होगा, अगर कोई इमेज जो है वो डार्क है, उसमें ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं वो डार्क हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन डार्क वैल्यूज़ को कुछ नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसको बेहतर बना लेते हैं, मतलब हम उसको उसकी वैल्यूज़ को वाइट की तरफ लेकर जाते हैं। सो वेरियस रीज़न है, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। क्या है, द ऑब्जेक्टिव और द सीन इल्यूमिनेशन इज़ पुअर। अगर कोई इमेज डार्क है तो क्या वजह हो सकती है, एक वजह ये हो सकती है कि जो हम इमेज ले रहे हैं उस जगह पर अंधेरा है, या वो ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर प्रॉपरली लाइट नहीं पड़ रही, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो इमेज है वो डार्क आ सकता है। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है, डायनामिक रेंज कैन नॉट बी कैप्चर बाय द सेंसर। जो हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने ज़्यादा रेंज की जो चेंज आ रहा है रेंज में वो उसको कैप्चर नहीं कर सकता। तो वो लेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो लेंस की क्वालिटी ऐसे है कि वो उस इमेज में जो कंट्रास्ट या जो कलर की वेरिएशन या जो लाइट की वेरिएशन आ रही है वो उसको कैप्चर नहीं कर सकता, तो इस सिचुएशन में भी हमारे पास इमेज जो है वो डार्क आ सकता है। और थर्ड क्या रीज़न हो सकती है, द पिक्चर अपर्चर ऑफ द लेंस कैमरा कैन नॉट प्रॉपरली बी सेट। सो अब ये भी हो सकता है कि जो हम अपर्चर कैमरे का होता है, जो नॉर्मली एक किस्म की विंडो होती है, जो वो विंडो ओपन होती है तो वो लाइट की इल्यूमिनेशन अंदर आती है और वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है। अगर तो फिल्म है तो वो फिल्म के ऊपर एक्सपोज हो जाती है, और अगर तो वो हमारे पास डिजिटल कैमरा है तो डिजिटल में हम उसको स्टोर कर लेते हैं उन पिक्सल वैल्यूज़ को कि उसकी इंटेंसिटी क्या आ रही है। तो अब अगर वो अपर्चर जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा, या वो प्रॉपरली सेट नहीं हुआ उस ख़ास इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम कैमरे में ऑटोमेटिक अपर्चर सेट करते हैं जो कि वो उसको एनवायरनमेंट के लिहाज से वो उसको ओपन क्लोज करता है, लेकिन हम उसको मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। तो अगर तो वो प्रॉपरली सेट नहीं हुआ तब भी हमारे पास इमेज डार्क आ सकते हैं। नॉर्मली जब डार्क एरिया होता है तो वहाँ हम अपर्चर को ज़्यादा देर के लिए ओपन रखते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा ब्राइट सिचुएशन में आ जाए। तो अगर तो वो ज़्यादा देर के लिए ओपन नहीं हो रहा तो वो इमेज जो है वो डार्क आ जाएगी। तो ये मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं हमारे पास कोई भी इमेज के डार्क आने की। तो अब इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये एक इमेज है तो इसमें लो कंट्रास्ट इमेज है, इसमें बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ हैं और हमारे पास जो डिटेल है वो नज़र नहीं आ रही इस इमेज में। तो अब हम इनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं कंट्रास्ट के लेवल में तो हमारे पास इक्वेशन सिंपली ये आएगी कि अगर हम 0 से लेकर R तक वैल्यूज़ ले रहे हैं जो कि ओरिजिनल इमेज के हैं और जो हम चेंजेस लाना चाह रहे हैं वो हैं S के सिचुएशन में, तो हमारे पास सिंपल जो ड्रॉ होगा वो ये नॉर्मल सिचुएशन में है। अगर हम कंट्रास्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो TR की वैल्यू हमारे पास इनमें से कोई भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जो बेसिक लॉ है वो ये है कि जो R
R1 है वो हमेशा लेस देन होगा R2 के, और S1 जो है वो हमेशा लेस देन होगा S2 के। तो ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, कि मतलब ये कि अगर हम इसकी बजाय कि ये यहाँ पर आए, ये हम इसको यहाँ पर ला सकते हैं, और R1 और S1 की वैल्यूज़ भी हम कहीं और पर ला सकते हैं। मतलब ये कि ये जो डायग्राम है, ये चेंज प्लॉटिंग जो है चेंज हो सकती है, लेकिन जो ये लॉ है ये हमेशा फुलफिल होना चाहिए कि R1 इज़ लेस देन R2 और S1 इज़ लेस देन S2। अब अगर हम ये करें कि R1 इज़ इक्वल टू S1 और R2 इज़ इक्वल टू S2, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे पास ये जो लाइन है ये स्ट्रेट आ जाएगी। मतलब जो हमारे पास 45 डिग्री की एंगल पे हमारे पास आ जाएगा। और अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी चेंजेस नहीं आ रही होंगी इमेज के अंदर। मतलब ये जो हम कंट्रास्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो चेंज नहीं आएगा। और अगर हम ये करें कि R1 इज़ इक्वल टू R2 कर लें और S1 इज़ इक्वल टू S2 कर लें, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं वो सिंपली थ्रेश होल्डिंग वाली ट्रांसफॉर्मेशन होगी। मतलब ये कि हम उसको कम्प्लीटली रिवर्स कर रहे हैं, या हम कोई वैल्यू जो हम डिफाइन कर रहे हैं कि इसके बाद क्या होना चाहिए, तो वो होगा जो हमने थ्रेश होल्डिंग वाला ऑपरेशन चेक किया था कि वो किस तरह होता है। तो इस वजह से कंट्रास्ट के लिए हमारे पास ये वाला रूल अप्लाई होना चाहिए। अब अगर हम ये देखें कि कंट्रास्ट कैसे काम करेगा, तो अगर हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं इस लेवल पे, लेकिन जो आउटपुट इमेज है उसमें हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आ रही। अब एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद हमारे पास सडन वैल्यूज़ की चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। मतलब ये कि एक पॉइंट जिसको हम सेट कर सकते हैं कि इसके बाद कंट्रास्ट को सडन चेंज होना चाहिए। तो वो जो चेंज है, अब अगर आप देखें यहाँ पर हल्की सी चेंज के बाद भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। तो ये जो यहाँ R2 तक जो भी वैल्यूज़ हैं वो बहुत सडन चेंज हो रही है। इस एरिया में हमारे पास ये जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। अगर हम R1 के एक पॉइंट भी चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका जो इफ़ेक्ट है 2 और 3 पॉइंट पे जा रहा है। मतलब ये कि ये जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। फिर हमारे पास R2 की एक लेवल आ जाती है कि उसके बाद दोबारा वो स्मूथ हो जाता है। और स्मूथ का मतलब ये है कि अगर हम काफ़ी चेंज भी करें तो S की वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही। मतलब ये कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये बहुत कम है, ठीक है। तो ये लेवल भी कम है हमारे पास और ये लेवल भी हमारे पास कम है। अब इनको हम चेंज कर सकते हैं कि अगर हम ये चाहें कि ये जो चेंज है ये कम आए, कंट्रास्ट जो है वो चेंजेस में कम आए, ये जो वैल्यूज़ हैं इसको कम असाइन हो, तो हम इस R2 की पोजीशन यहाँ पर ले आते हैं और R1 की पोजीशन यहाँ पर कहीं पर ले आते हैं। और या अगर हम ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम नीचे ले आना चाहें तो ये टोटली डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कंट्रास्ट को कैसे चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जो यूज़ हो रहा होता है फार्मूला वो एग्जैक्टली मोरलेस इस तरह होता है। अब अगर हम रिजल्ट्स देखना चाहें तो कंट्रास्ट इन्हांसमेंट में अगर हमारे पास वो ओरिजिनल इमेज है वो लेते हैं तो और हम अप्लाई करते हैं कंट्रास्ट, तो वो जो वैल्यूज़ हैं पिक्सेल्स के उसके इंटेंसिटी वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं और उससे वो ज़्यादातर डिटेल्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। तो ये सिंपल कंट्रास्ट की सिचुएशन में है। अब हम जाते हैं डायनामिक रेंज इन्हांसमेंट। वी नीड टू रिड्यूस द डायनामिक रेंज। An image with a high dynamic range cannot be properly reproduced by some display devices. If a gray level display device uses bits to display intensity level from 0 to 255, that is in total 256 different intensity levels, then if the original image is a minimum intensity value of 0 and the maximum intensity value is 1048, then the dynamic range of the original image is very high, but the display device cannot take care of such a high dynamic range. So
the display devices will mostly display the highest intensity value and the lower intensity values will not be displayed or they will be suppressed or compressed because it's not possible to visualize it or to show it. अब अगर हमारे पास जो changes आ रही हैं रेंज के अंदर अगर वो बहुत ज़्यादा हैं और हमारा जो डिवाइस है वो उसको डिस्प्ले नहीं कर सकता, इस तरह अक्सर जो छोटे डिवाइसेस होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो पर पिक्सल वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा शो करा सके या उसके जो इंटेंसिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं, तो अगर वो ज़्यादा हैं तो फिर वो शो नहीं हो सकेंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये जो डायनामिक रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है इसका, तो अगर वो ज़्यादा है तो हम उसको रिड्यूस करते हैं। तो जब हम उसको रिड्यूस करेंगे तो फिर वो विजुलाइज हो सकेगा। प्रॉब्लम इसमें ये आ जाता है कि जब ये वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं वो उनको डिस्प्ले कर देता है और जो लोएस्ट हैं वो उनको सप्रेस कर देता है, उनको डिस्प्ले नहीं कर सकता। इस वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाती है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। तो एग्जांपल ये है कि अगर ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और हम इसको किसी ऐसे डिवाइस पे डिस्प्ले कर रहे हैं जो कि डायनामिक रेंज को प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं कर सकता, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टोटली जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो गई है। ये एक्चुअली हम कोई फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसके वैल्यूज़ हैं, ये आगे हम जाकर देखेंगे कि ये किस तरह डिस्प्ले होती हैं और इसका मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट है और वो विजुलाइज नहीं हो रही क्योंकि जो डिवाइस है वो रेंज डिस्प्ले नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम उसके ऊपर रिड्यूस कर लें, उसके डायनामिक रेंज को रिड्यूस कर लें और फिर सेम डिवाइस के साथ उसको डिस्प्ले करें तो फिर वो हमारे पास विजुलाइजिंग उसकी पॉसिबल हो जाती है। तो अब हम ये कैसे करते हैं, हम सिंपली इसके लिए लॉग लेते हैं, लॉगरिथमिक वैल्यूज़ लेते हैं। So we assume that R is the intensity of pixel in the original image and S is the intensity of the pixel in the process image, and the relation is equal to TR, which is C log into 1 plus modulus of R, where T normally this C is a constant value. This constant has to be decided depending upon the dynamic range of the display device and the dynamic range of the input image, whatever the R is equal to 0. That is the intensity level of the input values. So log of normally why do we put this 1 here? It's because we do not have a log of 0, so that's why we need to put 1 plus modulus R. So if we apply this formula, then what we will have the reduce range of dynamic values. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास हमने आउटपुट जो है उसको एक रेंज पर रख लिया कि वो L-1 है और हम जा रहे हैं यहाँ इस वैल्यू से आगे बढ़ते जा रहे हैं जो कि R तक जा रहे हैं, कैपिटल R। अब हम इस फॉर्मूले के थ्रू जब भी हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, अगर हम उसको प्लॉट करेंगे तो प्लॉट उसको इस तरह कर सकेंगे और फार्मूला जो है वो उसका सिंपल ये वाला आ रहा है। तो इस C को हम कांस्टेंट कोई वैल्यू रखते हैं। अब ये टोटली डिपेंड करता है हमारे डिवाइस के ऊपर कि ये C की वैल्यू क्या रखी जाए कि वो उस डिवाइस में हमारे पास विजुलाइज हो सके। तो ये डिवाइस डिपेंडेंट है और साथ में आल्सो जो ये R है इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास R की वैल्यूज़ कितनी है, ये रेंज जो है ये कितनी ज़्यादा है। अगर तो अब अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं कि ये जो है 1048 है तो ये टोटल 1048 आ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे 255। तो अब ये हमारे पास 255 पे आ गया और यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं 1048 पॉइंट्स। अब हम फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे और ये C कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर
जो उसकी चेंजेस हैं वो ऑब्ज़र्व इस सिचुएशन में तो ज़्यादा हैं, क्योंकि जो डार्क हैं उन डार्क वैल्यूज़ को हम लाइट की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो जो डार्क वैल्यूज़ होंगी हम स्टार्ट में उसको लाइट की तरफ लेकर जाएंगे और उसके बाद उसमें कांस्टेंट चेंज आ रही है। मतलब ये कि वो वैल्यूज़ जो हैं हम उसको कंप्रेस करते जा रहे हैं, मतलब हम उसको कम करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, तो वो बहुत स्मूथली चेंजेस आ रही हैं। लेकिन जब हम एक लेवल पर पहुँच जाते हैं कि यहाँ की जो वैल्यूज़ जो सबसे लाइट हैं उनको एक लेवल पर हम ले आते हैं। मतलब ये कि जो लाइट वैल्यूज़ हैं यहाँ पर जो चेंजेस आ रही हैं वो काफ़ी सारी हैं, लेकिन यहाँ जो हम उसको असाइन कर रहे हैं वैल्यू वो बहुत कम चेंजेस हैं अगर हम यहाँ पर इसको ऑब्ज़र्व करें। ठीक है, तो इस यहाँ जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी और इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो ये रेंज हमारे पास ज़्यादा है और यहाँ पर हमारे पास कम है। तो इसका मतलब ये कि हम जो लाइट वैल्यूज़ हैं उनको हम एक जगह पर कंबाइन कर रहे हैं और जो डार्क वैल्यूज़ हैं उनको भी हम एक जगह पर कंबाइन कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो दरमियान में जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको हम एक स्मूथ चेंज के साथ ला रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि जो रेंज है जो कि बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं इस फार्मूला के साथ कि c log 1 प्लस r मॉडुलस, और ये c जो है ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं कि अगर हम w जो हमने कहा था कि w की वैल्यूज़ अगर हम चेंज करेंगे तो वो क्या इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। तो पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? द पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर डिफरेंट इमेज डिवाइसेस। इट इज़ यूज्ड फॉर इमेज capture devices, image printing and so on. The transformation function between the original image, the intensity and the process image intensity is given by, normally हम इसको represent करते हैं हम R जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं जिस पे हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं और हमारे पास जब हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो S आ जाता है। अब ये एक्चुअली किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्मूला को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इक्वल होगा C ऑफ R टू द पावर गामा। तो ये हम C हमारे पास अगेन फिर कांस्टेंट वैल्यू है और R हम लेते हैं और गामा की डिफरेंट वैल्यूज़ हम लेते हैं। अब गामा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ये वाला प्लॉट आ रहा है कि अगर हम गामा की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होगा, अगर हम 1.5 लेते हैं या 2.5 लेते हैं या 5.0 लेते हैं, या सेम अगर हम इसको लो लेवल में जाते हैं तो 0.67 लेते हैं, 0.47 लेते हैं और सेम इसी तरह चलते जाते हैं। और R की वैल्यू अगर हमारे पास गामा की वैल्यू जो है वो आ जाती है 0.04, तो हमारे पास प्लॉट किस तरह बनेगा। अब ये जो डिवाइसेस हैं, प्रिंटर डिवाइसेस हो गई या हमारे पास जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, उनमें ये फार्मूला ऑलरेडी अप्लाई होता है। वहाँ पर क्योंकि जो गामा रेज है उसके थ्रू हम उसको विजुलाइज करते हैं, तो ये जो फार्मूला है वो वहाँ पर ऑलरेडी फिक्स होता है। मतलब ये कि अगर कोई डिस्प्ले डिवाइस है तो उसमें ये फिक्स होगा कि उसके गामा रेज या जो गामा वैल्यूज़ हैं वो 2.5 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई इमेज डिस्प्ले करना चाहेंगे तो वो हमेशा गामा की वैल्यू हमारे पास 2.5 ही आएगी। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये क्योंकि फिक्स होगा, तो जब हमारे पास कोई इमेज आएगी जिसकी इंटेंसिटी कोई भी होगी जो कि हमारे पास R की सिचुएशन में होंगी, तो वो हमारे पास आउटपुट उसकी हमेशा S के अगेंस्ट आ रही होगी। मतलब ये कि मेरी इंटेंसिटी वैल्यू जो है वो शायद यहाँ पर हो और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो इधर होगी। तो R की इंटेंसिटी वैल्यूज़ ये जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज जो कि मेरे पास लाइट थी, जिसकी इंटेंसिटी लाइट थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो डिस्प्ले में मेरे पास डार्क नज़र आ रहा होगा क्योंकि ज़ीरो के करीब है यहाँ पर।
क्योंकि जो फार्मूला यूज़ हुआ है डिस्प्ले डिवाइस में उसमें गामा की वैल्यू 2.5 है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे कोई फार्मूला अप्लाई करना है और वो सिंपली मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा ताकि इससे मेरे पास गामा की वैल्यूज़ जो हैं वो बेहतर हो जाएं और विजुलाइजिंग उसकी बेहतर हो। तो हम करते क्या हैं, हम गामा करेक्शन करते हैं। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरे पास ओरिजिनल इमेज है और जो मेरा मॉनिटर है वो उसको डिस्प्ले कर रहा है, आर की वैल्यूज़ उसने ली है 2.5, मतलब ये कि जो गामा की वैल्यूज़ थी वो 2.5 थी यहाँ पर। तो इस वजह से अब ओरिजिनल इमेज ये थी और वो बहुत ज़्यादा डार्क अब नज़र आ रही है, तो वो विजुलाइजिंग उसकी बेहतर नहीं है। अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा, अगर मैं उसकी करेक्शन करूँगा तो करेक्शन की सिचुएशन में मैं उसका R पावर 1 2.5 लूँगा। अब ये मैं करेक्शन अप्लाई करूँगा तो उससे होगा ये कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो ओरिजिनल जो था इमेज वो ज़्यादा वाइट हो जाएगा, उसके ब्राइट कलर उसमें ज़्यादा आ जाएगा। तो जब इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा जो कि मॉनिटर का फार्मूला है तो वो उसको ओरिजिनल सिचुएशन में ले आएगा, क्योंकि नॉर्मली वो उसको डार्क करता है। तो जब वो ब्राइट इमेज को डार्क करेगा तो वो एग्जैक्टली जो मेरे पास ओरिजिनल इमेज था उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस वजह से हमें ये गामा करेक्शन करनी होती है कुछ डिवाइसेस के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम उसको जब विजुलाइज करते हैं मॉनिटर के ऊपर तो वो कलर्स कुछ और नज़र आ रहे होते हैं या उसकी इंटेंसिटी वैल्यूज़ जो हैं ग्रे स्केल के वो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम प्रिंट लेते हैं तो वो कुछ और नज़र आ रहे होते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि ये डिवाइस का इशू होता है और वो डिवाइस उसको अपने लिए सेट करता है इन वैल्यूज़ की वजह से, गामा की वैल्यूज़ की वजह से। तो अब हमें उसको हमेशा सेट करना होता है। अब इसके बाद आ जाता है पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन एज एन इमेज इन्हांसमेंट। So the transformation curves gets various shapes depend upon different values of gamma. If the value of gamma is less than 1, then on the darker side, the lower range of the intensity values will be mapped into a large range of intensity values in the process image, whereas on the brighter side, a larger range of intensity values will be mapped into lower range of the intensity values of the process image. And the inverse and the reverse is also true for gamma is greater than 1. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं तो वो ब्राइट ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो डिस्प्ले है वो हमारे पास कम नज़र आ रहा होता है। अब अगर हम वो पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास इमेज है जो कि हमने उसके ऊपर डिफरेंट गामा के वैल्यूज़ अप्लाई किए तो हमारे पास उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रे लेवल स्केलिंग। इसका मतलब ये है कि हमें कोई जो ग्रे लेवल है उसमें हम कोई स्केलिंग करते हैं, हम उसमें कोई वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। अब वो कैसे हो सकता है, वो इस सिचुएशन में होता है कि अगर को लाइट करना हो तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा कि मैं ए और बी की वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर लेता हूँ और वो ए और बी के दरमियान जो भी इंटेंसिटी वैल्यूज़ होंगी मैं उसको उसके लेवल को ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। और या ये हो सकता है कि जो ग्रे लेवल चेंजेस आ रही हैं वो एक ख़ास इमेज के ऊपर मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ कि ए और बी के बाद जो भी आ रही हैं वो चेंज हो जाए। मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास सिंपली अगर हम बाइनरी इमेज को देख रहे हैं उस सिचुएशन में होगा और यहाँ पर हमारे पास जो ग्रे लेवल स्केल में आ रही हैं इमेजेस हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है कि ये हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन आ रही है कि जो भी हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं इसके अलावा जो भी होंगी हम उसको कम्प्लीटली डेड कर देते हैं यहाँ पर। मतलब ये कि ये जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ ए और बी की, इसमें हम इन्हांसमेंट लाते हैं, बाकी सारा जो है एग्जैक्टली उसी तरह एक ख़ास वैल्यूज़ उसको असाइन करते हैं और वो हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं 0.3 असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन बी के बाद भी जो वैल्यूज़ हैं वो भी 3 पे आ रही हैं 0.3 पे, और ए से पहले भी जो वैल्यूज़ हैं वो भी 0.3 पे आ रही हैं, लेकिन उस ए और बी के दरमियान जो है हम उसको इन्हांस करते जा रहे हैं।
तो उसको हमने एक ख़ास इंटेंसिटी वैल्यू दे दी है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये हम इसको एक बाइनरी सिचुएशन में ला रहे हैं। और अगर हम ग्रे स्केल में लाना चाह रहे हैं तो ग्रे स्केल में एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ हम असाइन करते जा रहे हैं जो कि ओरिजिनल की हैं, यहाँ पर असाइन करते जा रहे हैं और ये ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं। लेकिन जब हम ए और बी पॉइंट पे पहुँचते हैं तो उस ख़ास एरिया को हम सिंपली ज़्यादा इंटेंसिटी वैल्यूज़ देते हैं और या उसको हम बाइनरी कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आज के लेक्चर को हम समराइज़ करते हैं। हमने देखा कि हमें इमेज इन्हांसमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी और उस सिचुएशन में हमारे पास कौन सी दो ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं। हमने ये देखा कि एक स्पेशल डोमेन ऑपरेशंस हैं और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑपरेशंस हैं। तो हमने स्पेशल डोमेन ऑपरेशन के सिचुएशन में पॉइंट प्रोसेसिंग को चेक किया कि ये क्या है, और पॉइंट प्रोसेसिंग हमने ये डिफ़ाइन किया कि ये हम इमेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं और एक पॉइंट के ऊपर हम चेंजेस ला रहे होते हैं। तो वो चेंजेस जो हैं वो थ्रेशोल्ड की सिचुएशन में भी हो सकती हैं, वो 1-to-1 भी हो सकती हैं और वो मास्क ऑपरेशन भी हो सकते हैं। मतलब ये कि हम उसके नाइबर्स की इंफॉर्मेशन लेकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि नेगेटिव इमेजेस के ऊपर अगर हम परफॉर्म करते हैं इन्हांसमेंट तो इसका क्या मतलब होगा, नेगेटिव हम कैसे परफॉर्म करते हैं। लो कंट्रास्ट है तो उसको हाई कंट्रास्ट में कैसे लाते हैं, और अगर हमारे पास डायनामिक रेंज है तो उसको हम कैसे रिड्यूस करते हैं किसी डिस्प्ले डिवाइस के लिए ताकि वो उसको रिप्रेजेंट कर सके। और उसके बाद हमने ये देखा कि पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन है, हम उसके लिए कोई वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते हैं, वो गामा की वैल्यूज़ हैं और उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसके बाद हम ग्रे लेवल स्केलिंग हमने देखा कि अगर हम ग्रे लेवल स्केलिंग करना चाह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट डिफ़ाइन करने होते हैं ए और बी, जो कि हम सिलेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो वो जब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं तो हम सिर्फ वहाँ पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो दूसरे किस्म के एनहांसमेंट हैं हम उनको चेक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।